given an email regarding that. Okay. So I'm going to start the class now. Okay. We are on the second block, right? Second block, first unit, right? Right, sir. Yes. Yes. And we have uh, discussed about Cloud evolution computing. of operating system, right? The evolution of system software evolution, right? That was our topic. Am I right? Yes, sir. We have end up yesterday cloud computing. Then we have to start the evaluation of software design paradigm. Yes. So we have done on cloud computing, right? Okay. Next, evolution of software design paradigm. See, design paradigm directly tells us about the structural and non-structural design, right? The structural and non-structural design. What does basically it means? Non-structural and structural, right? The structural says, first of all, as per your book, non-structural given there. Non-structural programming paradigms are means those paradigm through which we have designed the software, but the structure was not final. That which will comes after which one means just हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं बस we have taken that one means we have accepted the work, we have started the work, we have taken the work and started without any planning, without any designing, without any consideration about each and every points related to the particular topic, and that is comes under the non-structural design. See, there is a basic language, you know, there is a language, and we have written a program like that. See, integer I, we have decided I is an integer and I is equal to 12. So I is equal to 12. We have given the location I has the value 12. Go to 10. It will go to the level number 10. Continue. Go to the सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है yes. सर क्या स्क्रीन शेयर नहीं है सर स्क्रीन शेयर नहीं है ओके 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 जस्ट अ मिनट प्लीज अब शेयर है आप लोगों के पास में यस सर यस सर See, ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही बेसिक है देखो इंटीजर में हमने क्या लिया वी हैव टेकन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर आई सो कंप्यूटर हैज जनरेटेड अ मेमोरी स्पेस नेम्ड आई राइट ये मेमोरी स्पेस बनाया कंप्यूटर ने और उसमें क्या रख दिया आई का नाम उसका नाम दे दिया आई I is equal to 12 means the value 12 is assigned to I. It means the location, the ith location has value given as 12. Now go to 10. It means it will directly go to level number 10 and it will print line 10. ये कौन है भाई ओके नेक्स्ट क्या है again after printing of 10 line number 10 it will go to 2 right level number 2
and continue. I is equal to I minus 1. I is equal to I minus 1. It means what? The value of I will be decrement by 1. It means I is equal to I minus 1 means 12 minus 1. The value of I is what? 12. 12 minus 1, it means 11. Now the value of I will be 11. If I equal to 0, if I equal to 0, is I 0? This is 0. Is it 0? No, sir. No. Then it No, will, अगर ये 0 होता तो कहाँ जाता? 99 में. Otherwise what? It will continue. It will go to print 10, line 10. Line 10 will printed by this one, and then it will go to again 2. ये फिर से कहाँ जाएगा? लेवल नंबर 2 पे जाएगा. फिर 11 minus 1 10 हो जाएगा. फिर 10 के लिए प्रिंट करेगा. जब तक ये 0 ना हो तब तक ये पर्टिकुलर लूप क्या होगा? चलता रहेगा. और ये कहलाता है हमारा अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, हमने प्रोसेस को लिख दिया है. समझ में आया अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर दोबारा समझिए सर, समझ में नहीं आया. ओके, कोई बात नहीं. अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका स्ट्रक्चर कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि आपको वही लिखना है. ठीक है, अभी समझ में आया गांगुली साहब? हाँ वो समझ में आया. तो ये अनस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि जिसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी. सर ये कहाँ लिखना है इस तरह? ये आपको सिर्फ समझना है, और बाकी प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग ना पहले पढ़ाए जाते थे बच्चों को क्लास 7-6 में. वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. अब ये सब यूज में नहीं है, बस प्रोसेस के लिए समझाया जा रहा है. आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझाऊंगा मैं, तब आपको अच्छे से समझना है. ठीक है, ठीक है सर. ये नॉर्मल जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं ना, कहते हैं ना, उसी टाइप का है ये. जैसे हमें कहा जाएगा कि चलो कोई भी काम करना है, जैसे मान लो एक नंबर लेना है, मान लो 12 है, कहने का मतलब 12 को तब तक इसको प्रिंट करना है, 12 से शुरू करना है और 0 तक चलना है. तो क्या हुआ? ये हमने कहा दिया 12 to 0 तक चलना है, तो क्या हुआ? ये डिक्रीमेंट होकर चलेगा. इसमें कोई डाउट किसी को भी? तो क्या करेंगे? पहले 12 प्रिंट करेंगे, फिर 11 प्रिंट करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 7 करेंगे. तो ये कैसे होगा? एक एक करके क्या करेंगे? माइनस करते चले जाएंगे. यही ना करते चले जाएंगे. यस सर. तो इसी को यहाँ बनाया गया है. नॉर्मल छोटा सा पार्ट है कि हमने क्या किया कि पहले एक वेरिएबल ले लिया आई, और आई को इंटीजर टाइप का ले लिया, और आई में हमने क्या रख दिया? वैल्यू 12. आई में 12 हो गया. गो टू 10 मतलब क्या हुआ? पहले तो 12 तो प्रिंट करना होगा ना, हम ये भी छोड़ देते हैं, ये हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए. प्रिंट हमने आई लिख दिया, तो आई की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग? 12. तो यहाँ 12 प्रिंट कर देगा. यस सर. ये लाइन हो गया, यहाँ आया है. अब क्या होगा? गो टू 2, तो 2 नंबर लेवल पे जाएगा ना? बोलना. हाँ. अब 2 में क्या होगा? कंटिन्यू किया, i इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो कितना हो गया? i में क्या हो जाएगा? 11. अभी क्लियर भूपति जी? क्लियर हो रहा? क्लियर. एंड देन अब चेक करेगा क्या i की वैल्यू 0 है? i में क्या है? अभी 11 है. 0 नहीं है. 0 नहीं है तो ये गो टू 99 नहीं होगा, और कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा,
और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो कितना प्रिंट कर देगा? बोलिए। दो स्टेप क्लियर हो गया आप लोगों को? हम्म। सर इसके बाद फिर गो टू 2 और ये चला जाएगा फिर से हमारा यहाँ पे, यही एक एक करके माइनस, फिर 10 होगा तो ये भी 0 नहीं होगा तो 10 प्रिंट कर देगा, फिर 9 होगा फिर 9 प्रिंट करेगा। जैसे करते करते लास्ट में जाकर 0 होगा, 0 होते हैं गो टू 99 तो यहाँ पर जाएगा 99 पे और कंटिन्यू। हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर स्टॉप लिख देते हैं। अभी समझ में आ गया? यस। This is one of the non-structural programming language. There is no structure, means where what I have to means at what place what should be written, that there is no rules for that. You can write as per your requirement, and that's why it is known as non-structural programming. Now, structural and modular programming language. Yes, every programming languages has some rules and regulations, but some of the programming languages has the step which is already predefined steps. Predefined steps means already defined that you have to write only this step first, after that you can do anything. मतलब पहले से डिफाइन होता है कि पहले आपको ये लिखना है, इसके बाद ही आप कुछ लिख सकते हो, and that is known as structural and modular programming language or paradigm. So there are so many structural programming language, and a structural programming language, you can see the flow of the structural programming language. First of all, you write step 1, then we should have many paths. कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू हुआ तो इधर जाएंगे, फॉल्स हुआ तो इधर से निकलेंगे। ये क्या होगा? एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम लोग फर्दर पढ़ते हैं, अभी जब फ्लो चार्ट वगैरह देखेंगे अभी हम लोग तो देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या है? स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है, उसको हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके लिखा है। स्टेप 1 में हमारा कुछ काम होगा, फिर उसके कंडीशन को चेक करेंगे, ट्रू होगा तो कोई पाथ चलेगा और फॉल्स होगा तो कोई पाथ चलेगा, राइट। उसमें भी जाकर हमारे बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। That's why it is known as structural programming language. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, जो एक रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई भी रियल लाइफ एंटिटीज की बात करें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसके अपने कुछ फीचर्स हैं। जिस फीचर्स में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? किसी भी कैटेगरी में एक पर्टिकुलर उसका पार्टिसिपेशन लेने वाला एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिया रहे हैं, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। और कोई कुछ और कहना चाहता था? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हमने सिंपल डेफिनेशन आपने बहुत बढ़िया दिया कि किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का मतलब ब्लूप्रिंट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कहते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। ऑफ अ क्लास यही होता है।
आर्यन? यस सर। और ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, तो व्हाट इज क्लास? दूसरा टॉपिक है हमारे पास, ये जो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो है क्लास। दूसरा फीचर क्या आ गया? क्लास। तो देखो ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल, हम रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला है हमने, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बोला है, तो उसी को लेके मैं समझाता हूं आप लोगों को। ऑब्जेक्ट, सबसे बड़े एग्जांपल ऑब्जेक्ट के हम लोग हैं, आप, हम, हमारी ये जो जितनी हमारी ये आज की क्लास की फैमिली है, आप सब लोग लगभग 44% हम लोग हैं, हम सब लोग क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट है, कौन बताएगा? बोलिए। हम सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। जो ह्यूमन है, ओके, गुड, ह्यूमन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन बताए। आपका थोड़ा सा क्या नाम है, कौनी रानी जी ना, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। सर हम सब ह्यूमन है, तो मतलब एक क्लास हो गई, ह्यूमन क्लास। हाँ, बहुत बढ़िया बताया, गुड, 100% राइट। ह्यूमन इज अ क्लास एंड वी आर representing myself, Brijesh. I am Brijesh Singh. I am representing the behavior of human beings, right? That's why I'm in an object category. मैं ऑब्जेक्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं, क्लास का ब्लूप्रिंट हूं मैं, ह्यूमन का ब्लूप्रिंट हूं। आप सब क्या हैं? ह्यूमन का ब्लूप्रिंट है, और ह्यूमन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन क्या हो गया? क्लास हो गया, और हम लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। एग्जाम्पल, एक क्लास ब्लूप्रिंट होता होगा सर, हम तो रियल एंटिटी हो गए ना सर। रियल एंटिटी हो गए, लेकिन देखिए एंड रियल क्लास एंटिटी तो क्या ब्लूप्रिंट होता है सर। है? ब्लूप्रिंट कहां पर है? आपका अगर हम बात करें तो आप किस तरह के जीव हैं? हम मनुष्य हैं सर। मनुष्य हैं। तो आप अपने आप को जाते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य हैं, कि कहते हैं वानवर हैं आप? आपसे मैं पूछूंगा आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मनुष्य हैं? नहीं, भंवर। हाँ, भंवर हैं आप। तो भंवर क्या है भाई? मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ सर। ग्रुप, आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं, राइट? किस यस। क्लास से? तो ह्यूमन क्लास से। इसलिए आप क्या हो गए? एक ऑब्जेक्ट हो गए। आपका मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, पैर है, सब कुछ है, यस सर। और हमारा भी है, यहाँ बाकी सबका भी है। तो ह्यूमन, हम सबका जाति एक है, क्या है? ह्यूमन बींग्स, यानी हमारा क्लास है ह्यूमन बींग्स, और यस हम सर। लोग ह्यूमन बींग्स को प्रेजेंट करते हैं। अब क्लियर हो यस। गया? यस सर। जी, क्लियर है सर। भूपति जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। नो नो सर, सिंपली कहो सर, मनुष्य और किसी जीवन के साथ कंपेयर करने के लिए और किसी मशीन के साथ कंपेयर करने के लिए बोलिए, जल्दी समझ में आए। हाँ, तो पहले मनुष्य के साथ मैंने इसलिए बताया ताकि समझ में आ गया। अब आते हैं, इसी को लेते हैं। अगर रियल लाइफ में हम बात करते हैं तो ये रियल लाइफ की बात हो गई। दूसरा, अगर हम देखिए, एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। एक क्लास का क्या होता है? सबसे पहले देखिए, क्लास के 3 चीजें होती हैं। क्लास का नेम होता है नेम। उसके बाद उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अगर एक स्कूल हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो स्कूल इज व्हाट? स्कूल इज अ क्लास। लेकिन वही कह देंगे कि डीपीएस स्कूल, तो डीपीएस क्या हो जाएगा? एक एंटिटी हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल का एक ऑब्जेक्ट है डीपीएस। यस। दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, बाल भारती स्कूल्स, ये क्या है? ये सब एक एक स्कूल के क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। स्कूल के ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। तो यहां पर इसका आइडेंटिफिकेशन होगा।
जैसे हमने कह दिया, अगर सिंपल लिया हमने, यहां पर हमने लिख दिया स्कूल, यहां पर उसका क्या होगा, आइडेंटिटी, नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, राइट। स्कूल में क्या होगे, टीचिंग फैसिलिटी होगी, एग्जाम फैसिलिटी होगा। तो 3 चीजें होती हैं किसी भी क्लास की। क्या होता है, उसका नाम होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, और उसकी फंक्शनल होते, उसके फंक्शंस होते हैं, मतलब वर्किंग होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। और हमारा भी क्या है, एक नाम है, एक हमारा नाम है, एक हमारा अपना फंक्शनल, हमारा मतलब आइडेंटिटी है, हमारा नाम है, और साथ में हमारे कुछ फंक्शनल वर्क भी हैं कि हम लोग ये काम करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में? जी बोलिए, आप पूछना चाहते हैं, रोहित वर्मा। सर जैसे आपने बताया कि स्कूल की क्लास के अंदर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स नहीं के नहीं अंदर नहीं, आपने सुनने में गलती कर दिया। स्कूल एक क्लास है, जिस क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। डीपीएस हो गया, डीआईएस हो गया, आपका बाल भारती हो गया, ऐसे मैंने बताया। ठीक है, स्कूल क्या है, क्लास है जो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डीपीएस क्या है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, ये मैंने बोला। हाँ बोलिए, अब बोलिए। सर। तो जैसे डीपीएस एक ऑब्जेक्ट हो गया अंडर द क्लास नेम्ड स्कूल। हाँ बिल्कुल करेक्ट, तो 100%। अभी हाँ सर, तो जैसे डीपीएस के अंदर भी डीपीएस एज ए क्लास भी बिहेव कर सकता है क्या? जैसे डीपीएस, अगर मैंने बोला डीपीएस स्कूल, तो उस स्कूल के अंदर आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डीपीएस एक क्लास है, अगर स्टूडेंट्स को एज ऑब्जेक्ट माना जाए तो। आप क्या काम करते हैं रोहित? सर डेवलपर। मैं आपके लैंग्वेज से पहचान लिया, इसीलिए मैंने बोला ये चीज। बिल्कुल कर सकता है। जब आपका जो सोच था वो मैं सोच बता देता हूँ कहाँ पे था, कि डीपीएस एक स्कूल है, लेकिन डीपीएस की तो बहुत सारी ब्रांचेज है, राइट? आप यही सोच रहे थे ना? हाँ सर, मतलब क्या एक ऑब्जेक्ट एज ए क्लास भी बिहेव कर सकता है क्या, ये डाउट है। बिल्कुल, इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। अभी मैं आ रहा हूँ उसी पे, ठीक है। इनहेरिटेंस पढ़ा होगा आपने। तो जितना डेप्थ जाएंगे क्लास भी डिफरेंट होता जाएगा। बिल्कुल, वही तो उसी को बोलते हैं लेवल बाय लेवल डिफाइन करना ना, लेबलिंग स्ट्रक्चर तो वही होता है। अब क्लास हमारा हो गया, क्लास के बाद अभी जो आपने बोला रोहित, वो क्या है, ये आपका डीपीएस है। डीपीएस के लिए, पूरे डीपीएस, इंटायर डीपीएस सोसाइटी के लिए ये डीपीएस क्या बन गया, एक क्लास बन जाएगा। और फर्दर मोर हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली वो क्लास नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करके इसी की प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ सारी इसी की प्रॉपर्टी होगी। बस इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं रोहित? सर अगर डीपीएस का कोई ब्रांच आप बनाते हैं तो उसका ब्रांच एड्रेस ही सिर्फ डिफरेंट होगा, बाकी सारा कुछ तो सेम ही होगा, नाम सेम होगा, हाँ उसका फंक्शनल सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ उसका एड्रेस बदल जाएगा। उसका एड्रेस और लोकेशन और कुछ बेसिक डिटेल्स बदल जाएंगे, बाकी डिटेल्स कॉमन रहेंगे। इसलिए क्या होगा, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो एक डीपीएस से, पहला डीपीएस हमने कोलकाता बनाया, कोलकाता में हमने चलो बालीगंज ले लिया, कोलकाता में हमने ले लिया टालीगंज ले लिया, हमने कोलकाता में हमने बेला ले लिया, दिल्ली में हमने द्वारका ले लिया, दिल्ली में हमने उत्तम नगर ले लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा हमारा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रहेगा उसका सिर्फ। लेकिन इसको पूरे तरीके से आप नहीं कह सकते क्लास की तरह, क्लास हम कह सकते, क्लास नहीं कह सकते, लेकिन बिहेव करेगा क्लास की तरह बस।
क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। क्लास के बाद आता है, ये मैं अभी इसलिए पढ़ाते जा रहा हूं ताकि आगे भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो क्यों ना अभी कर ले हम। तो क्लास हो गया, क्लास के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अब आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन? कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? क्लास में कुछ भी ऐसा वर्क जो एंड यूजर को नहीं दिखाना है, उसको हाइड करके इंटरनली जो वर्क करना है, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल सही बताया आपने। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग हैं। हाइडिंग द अनयूजफुल फंक्शन। इंफॉर्मेशन, अनयूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट? और जो सिंपल एब्स्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल दे देते हो कि अगर नॉर्मल जो बुक्स पढ़ोगे ना, मैक्सिमम बुक्स पढ़ोगे, एक बहुत प्यारा एग्जांपल लिखा होता है कि एक कार ड्राइवर है और आपकी कार ड्राइविंग स्कूल है, तो आप उसको क्या सिखाओगे? आपके पास पढ़ने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, तो क्या सिखाओगे? अगर कार ड्राइविंग सीखने आता है तो क्या सिखाओगे आप? कार कैसे ड्राइव करते हैं, राइट? ये तो नहीं सिखाओगे ना कि कार कैसे बनाते हैं। बट सर हम लोग तो उस ड्राइवर को तो बताएंगे ना कि कौन सा क्या फंक्शन है, इस चीज का क्या फंक्शन है। फंक्शन जो ड्राइवर के लिए जरूरी है वही बताएंगे ना हम। हाँ हाँ हाँ। और ड्राइवर, अब मान लो उसको तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि पंचर कैसे लगाते हैं, उसको तो सिर्फ बताना है कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स का जो जो उसको जरूरत है, कौन सी चीजें कैसे फंक्शनल होती हैं, कब किस सिचुएशन में क्या करना है, राइट? So this is abstraction. Abstraction is the process of hiding those information which is not essential at that moment for the specific post or region. किसी रीजियन और किसी पोस्ट के लिए जहां पर जो चीज जरूरी नहीं है उसे हाइड करना क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जैसे हम आप लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता उसके अंदर की फंक्शनलिटी कौन से डेटाबेस से क्या कनेक्ट हुआ, तो हाँ, ये वो भी बिल्कुल सही है, एब्स्ट्रैक्शन ही हो बिल्कुल सही है। उससे मतलब क्या है? कि एंड यूजर को तो उससे मतलब नहीं है ना, उसको एंड यूजर को क्या मतलब है? फंक्शन हमारी सही से चलनी चाहिए जी, राइट? यस। I've always requested all of you, you may ask questions whenever you are getting any difficulties. I am there to explain. If language issue, you can say me. आप सभी से रिक्वेस्ट करता रहता हूं मैं कि आप लोग बताते रहे मुझे, कोई इश्यूज है तो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो 3-4 लोग ही तो पढ़ने लिए नहीं आते हैं ना, सब लोग पढ़ने आते हैं। आप लोग पूछेंगे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएंगे और अच्छी पढ़ाई होगी। अच्छा लगता है 3-4 लोग हमारे हैं, भूपति जी हैं, आप आज भंवर आए हैं, अभिषेक हैं, रोहित है, ये आप लोग बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और डिस्कशन से क्या होता है कि अगर मेरे से कुछ छूट ही रहा होगा तो वो भी आ जाएगा आपके लिए। हर्ष है, हर्ष आपकी आवाज भले नहीं आ रही है, आप अनम्यूटेड बैठे हुए हैं हर्ष। मैं बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, किसी को हिंदी से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बता देना तो मैं उसके हिसाब से बोलूंगा। नहीं सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से लोग हैं, जो भी है पूरे इंडिया से हैं, तो किसी को हो सकता है हिंदी से प्रॉब्लम। तो जैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट आ रहा है, जैसे सब लोग बातें कर रहे हैं, उसी भी पे मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, राइट? तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा हमने। और नेक्स्ट आता है क्या? इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अपने आप को पूरा। इफ यू say about object oriented, in entire object oriented
programming language, a human being can be taken as an example. What is encapsulation? Encapsulation is what? किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस से हाइड करने के प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. Yes, encapsulation means hiding information and storing in a body, right? जो डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, हम एक बॉडी के थ्रू एक्सेस करें. जैसे मान लो हमने एक लोकेशन बना दिया, उस लोकेशन का नाम ए दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया नेम, इसमें लिख दिया एड्रेस, इसमें लिखा हमने कॉन्टेक्ट नंबर. तो क्या होगा, इसमें नाम स्टोर है, इसमें एड्रेस स्टोर है, इसमें तो हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट नेम नहीं ले सकते, लेकिन हमें कहना पड़ेगा ए डॉट नेम, ए का नेम, नेम ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, राइट. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन के हम लोग भी एग्जाम्पल है. हम कैसे एग्जाम्पल है भाई? we have 206 types of bones in our body, different types of muscles. तो हम बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे ब्लड, बहुत सारे बोन्स से मिलकर के बने हुए हैं, बहुत सारे नर्वस सिस्टम से बने हुए हैं. तो हमें अगर मेरे हाथ को, मेरे को कोई ये तो नहीं कहेगा ब्रिजेश का उंगली, ये तो कोई नहीं कहेगा. ब्रिजेश की हड्डी नहीं कहेगा. क्या कहेगा? ब्रिजेश का नाम. जब एक नाम लेकर नहीं चल सकते, पूरा का पूरा उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर लेकर के चल सकते हैं. दैट इज ऑल्सो इनकैप्सुलेशन. यस हर्ष आप कुछ कहना चाहते हैं? हर्ष तंबर. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ये ए ऑफ नेम ऑफ ए बोला जो आपने, बरोबर, तो आपने जो बॉडी वाला एग्जांपल दिया कि ब्लड तो एक ही है ना सर, बोन्स अलग है, कैपिलरीज अलग है, तो उसको कैसे रिडिफाइन करेंगे सर? तो जो आपने जो बॉडी वाला मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्जांपल ये मैंने दिया, वो समझाने के लिए सिर्फ बोला मैंने. हमारे बॉडी में भी बहुत तरह के ब्लड होते हैं. 3 तरह के ब्लड होते हैं ना हमारे बॉडी में. हाँ सर. तो उसको हमने अलग अलग कहा कि ब्लड ही हम कहते हैं डायरेक्ट. लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम जब मेरा ब्लड जब जाएगा किसी लैब में चेक करने के लिए, तो उस पे जाते हो, जब भी किसी लैब में जाते हो तो क्या होता है, आप अपना ब्लड देते हो तो ब्लड पे आपका एक सैंपल लगा दिया जाता है आपका कस्टमर नंबर का, राइट? जी सर. ताकि आपको आइडेंटिफाई करेगा स्पेशली. ब्लड से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, किसका ब्लड है भाई? नहीं, वो तो है सर. हाँ, तो मैंने इसलिए बताया. यहाँ पर सिंपल आप समझिए कि एक क्लास है, राइट? क्लास ये हो गया. क्लास के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, ए नाम का क्लास है, जिसमें नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है. तो जब भी इससे नेम देखना होगा तो क्या कहेंगे? ए का नेम ऑफ ए, यस, एड्रेस ऑफ ए एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ ए. तो क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज हिडन अंडर बॉडी ए. Yes, that is encapsulation. Next, we are under inheritance. Inheritance is what? Inheritance is the process of deriving a new class with the help of an existing class. फिर से सुन लेते हैं. Inheritance is the process of deriving a new class with the help of an एग्जिस्टिंग क्लास. किसी ऑलरेडी बने हुए क्लास से जब कोई दूसरा क्लास उसकी सहायता से बनाते हैं तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास विद द हेल्प ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास. एग्जाम्पल, अगर हमने कहा, क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये क्लास बनाया हमने एम्प्लॉय का, हमने EMP ID रख दिया, नेम रख दिया,
कॉन्टेक्ट नंबर रख दिया, डिपार्टमेंट रख दिया, राइट। फंक्शन हमने 2 बना दिए, इनपुट आउटपुट। ये पूरा क्या हो गया? क्लास हो गया। बोलिए, इसमें क्लास बनाने में किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? No, sir. So this is the class. The name of the class is employee. We have 4 properties, that is 4 attributes, sorry, and that is employee ID, name, contact number, and department. Now we have 2 functions, that is input and output. Now I wanted to make another class, that is part-time employees. See, the common part is what? These are the common parts of the employee. किसी भी एम्प्लॉय का ये तो होगा ही है ना, उसका आईडी होगा, नेम होगा, राइट। उसका आईडी होगा, उसका नाम होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये सारे तो हम यहीं से उठा लेंगे। यहां पर हमने सैलरी रख दिया और हमने गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बना लिया। तो क्या हुआ? इसकी प्रॉपर्टी को इसमें हमने एडॉप्ट किया है, राइट। वी हैव एडॉप्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय इन द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। बोलिए, कोई भी हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ पूछना हो, इसमें से पूछो। सर हम लोग ये तो ऐसे भी बता सकते हैं ना कि जैसे इग्नू हमारा हो गया क्लास, उसके ऊपर हम लोग सब डिवाइड करेंगे। दूसरा क्लास जो अब हम लोग बनाए इनहेरिटेंस में तो हो गया बीसीए, जो जो सब्जेक्ट्स है, बीएससी वो हो गया। उसके अंदर बीसीए को भी अगर फर्दर अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो बीसीए ऑनलाइन, बीसीए नॉर्मल वाला, तो यही हो जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इग्नू नहीं कहोगे, आपको बीसीए कर लो। बीसीए से बीसीए ऑनलाइन कर सकते हो, राइट। बीसीए ओडीएल और बीसीए कर सकते हो। यस, श्रेया तिवारी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। श्रेया तिवारी, यू हैव रेज योर हैंड। ओके। सर, तो इनहेरिटेंस का कंप्यूटर में क्या यूज होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, कंप्यूटर में जब इसका तब तक यूज नहीं होगा जब तक आप सॉफ्टवेयर बनाने का नहीं सोच रहे हो। ये सॉफ्टवेयर जब बनाने जाते हैं, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं किसी चीज का, कोई काम करने जाते हो, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लोगे तो वहां पर आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक बड़ा सा क्लास है, आप सिंपल ले लो इनहेरिटेंस का। अभी मैंने एम्प्लॉय वाला बताया। किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, तो वहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगी तो, राइट। यस कंपनी के लिए सारे एम्प्लॉय ही होते हैं। जी प्रज्ञा, बोलिए। सर, बोलिए। मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो आप? सर नहीं कुछ, आप बोलिए। हाँ, मैंने क्या कहा, नॉर्मल कहा कि एक क्लास है तो उस क्लास की प्रॉपर्टी लेकर दूसरी क्लासेस बनाना। जब एम्प्लॉइज होते हैं, स्कूल में ही ले लो, टीचर्स हैं, स्टाफ है। हमारे स्कूल को लेकर समझोगे तो आसानी से समझ लोगे। एक हमारे स्कूल में क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, मतलब स्टाफ होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं स्कूल में। अब स्टाफ क्या हो सकता है? स्टाफ एक टीचर भी हो सकता है, राइट। स्टाफ एक गार्डनर भी हो सकता है, स्टाफ एक सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, स्टाफ एक क्लर्क भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है स्टाफ। तो क्या होगा, कैटेगरी। तो स्टाफ तो हमारा कॉमन है,
स्टाफ को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, कहा क्या, टीचिंग स्टाफ। स्टाफ को क्या कह दिया हमने कि क्लर्कियल स्टाफ, राइट। तो यहाँ कुछ चीजें कॉमन होगी जो हर जगह होंगी, इनकी सिर्फ फंक्शनलिटी चेंज होगी, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब समझ में आया श्रेया? रीयूज के लिए यूज होता है ना, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। रीयूजेबिलिटी के लिए ही यूज होता है, ताकि एक ही हमारा code को कम से बार-बार- कम काम करना पड़े। अगर हम बार बार डिफाइन करेंगे तो हमारा मेमोरी भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, राइट। हर क्लास में जैसे नेम ना लिख के एक बेस क्लास में नेम लिख दिया, उसको डिराइव करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी आ रहा हूँ एक एक करके। सर तो ये हुआ हमारा, हाँ बोलिए बोलिए देवप्रिया। I had a doubt about the difference between encapsulation and abstraction. Is encapsulation an ability of the object and abstraction is a way of design? Because you said Yes, both is hiding information. No, encapsulation is completely hiding information in a body, while abstraction is the thing which is using only essential while ignoring the unessential component. That is also hidden. Both are hidden, but whenever you need, you can use. Otherwise, you can ignore. That is comes under the abstraction. Suppose you are the student of IGNOU and you are a student of BCA, and there are 39 courses in BCA, but you are only a student of BCA first sem, so you need to study only 5 courses from the entire 39. That is called abstraction. You are taking only those which is essential for you while ignoring that one. You have ability to access, but you are ignoring that one. This is abstraction. While encapsulation means all those 39 subjects under a BCA program. Got it? Okay, but we access them only one at a time whenever we need them. Yes, as per your requirements only, right? Okay, thank you, sir. Yes, you may ask anytime. Okay. So inherit. Sir, जी बिना is this the part of basic HTML? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बच्चे। बेसिक HTML है क्या ये? HTML? बेसिक HTML है क्या सर ये? ये HTML नहीं है बच्चे। HTML का दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं है। HTML is a scripting language that is basically for design purpose. We are not talking about design purposes. We are talking about development purposes. HTML is not a language basically. Language are those which has grammar to follow, right? आएंगे उसको भी पढ़ाएंगे आप लोगों को फर्दर मोर। इनकैप्सुलेशन कहाँ पे थे हम लोग? इनहेरिटेंस पे थे। इनहेरिटेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विल डिस्कस फर्दर। अभी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस के बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो शब्दों से बना है, पॉली एंड मॉर्फ्स। दीज आर द ग्रीक वर्ड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। जब हमारे पास ये एबिलिटी हो, whenever we have ability to use a particular thing in many different forms, we can say polymorphism is there. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि हम लोग किसी एक चीज को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे यूज कर सके और हमारे पास करने की फैसिलिटी हो। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल हम लोग भी हैं, आप लोग हैं। आप लोगों का नाम एक ही रहता है, नाम हमारा एक ही है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जगह पे जाते हैं और हम बन जाते हैं डिफरेंट तरह के हम बिहेवियर अपना दिखाते हैं। जैसे आप सब, यू आर ऑल आर स्टूडेंट इन माय क्लास,
So you are behaving like a student over here. If you will go with your friends, you will behave there as a friend over there. जब आप दोस्तों के साथ जाओगे तो वहां अपने दोस्त जैसा बिहेव करोगे, हमारे पास हो स्टूडेंट जैसा बिहेव करोगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो बच्चे जैसा बिहेव करोगे. These are the example of polymorphism. In similar ways, in programming language, the function overloading is the polymorphism. Same function can be used in different ways. The name of the function will be same, but the behavior will be changed. कुछ छूटा है? क्लास बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म. 6 फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के और मैंने आपको सारे बता दिए. नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड पैराडिगम. कंपोनेंट बेस्ड पैराडिगम में क्या होता है कि देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम व्हिच वी हैव टू राइट दैट. कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हमें लिखने ही है. मैक्सिमम कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम आर कम्स अंडर द हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, where most of the hardware systems should be interconnected for a specific purposes. ठीक है, इसको कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम में जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आया था, दैट इज अ कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम. यस, तेजस्वी सिंह बोलिए, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? ओके, नो सर, गलती से लग गया. कोई बात नहीं, ये गलती से ही तो कम से कम आवाज तुम्हारा सुना मैंने. हाँ गांगुली जी बोलिए. अभिषेक सर जो polymorphism, we can say that changes our behavior according to our society. So that's because whatever our surroundings, we can change this. बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर सकते हैं आप. जैसे आप ऑफिस में अपने जाते हैं, राइट, तो वहां पर भी आपको लोग क्या बोलते हैं? अभिषेक ही बोलते हैं ना. यस, अभिषेक जी आप ये काम कर दीजिए, बोला जाता है आपको. और आपका रोल वहां पे मैनेजर का है. अगर ऑफिस में आप मैनेजर हैं तो आप मैनेजमेंट का काम देखते हैं, राइट. यस. और घर में आते हैं तो क्या होता है? आप अपने फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन वहां भी अभिषेक और यहाँ भी अभिषेक, राइट. ओके, यस, ओके. इसको हम ना नॉर्मल प्रोग्रामिंग की भाषा में फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं हम लोग. अब इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जिस तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही लेके पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को हमेशा से. तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोसेस डिफाइन होता है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया. इसको एक बार देख लेंगे. ये कोड वगैरह आप लोग नहीं देखेंगे अभी, बिल्कुल कोड नहीं देखना है आप लोगों को. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने आप लोगों को इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सब कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को. पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ मैं बताते गया. कोड आप लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे अभी. इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. देखिए कुछ सॉफ्टवेयर, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर व्हिच इज बेस्ड ऑन लाइसेंसिंग. आप लोग बहुत सारे इसमें से एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो आप लोगों ने आजकल एक नया वर्ड है SaaS, शास मॉडल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सुना है आप लोगों ने? यस सर. यस सर. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है? एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया और उसी सॉफ्टवेयर को हम दूसरे लोगों को देते जाते हैं सर्विस के रूप में, जिसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. राइट. सब्सक्रिप्शन का मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया और आप जितने दिनों के लिए सब्सक्राइब किया है, जो आपने ऑफर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फीचर्स मिलेंगे. यस विकास सागर, हर्ष पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. सर एसएस वाला कांसेप्ट है, एक बार रिपीट कर सकते हो सर? बिल्कुल वही कर रहा हूं, अभी तो वही स्टार्ट ही कर रहा हूं. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं, यानी कि कोई सर्विस आप लेते हैं कहीं से
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब तो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना मोबाइल फोन में, जी सर। तो आप क्या करते हैं, आप अपना रिचार्ज करते हैं तो 1.5 GB पर डे आपको मिलता है, राइट? राइट सर। लेकिन कोई ये भी चाहता है कि 3 GB चाहिए तो 3 GB के हिसाब से रिचार्ज, राइट? तो ये क्या है, ये सर्विसेज हम यूज इनहेल करते हैं सर्विसेज को, वी आर जस्ट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर फ्रॉम द पर्टिकुलर डोमेन, एंड दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लाइक इफ you will talk about the school softwares, all the schools have their software, their app, but that is based on the number of students. आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा लगेगा, that is software as a service। ये भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सारे स्कूल वाले, और वो कहते हैं वो हर स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज करते हैं और हर स्टूडेंट के हिसाब से वो पैसे पे भी करते हैं, ठीक है? तो लाइसेंसिंग एस्पेक्ट्स में दो तरह के होते हैं। हमने एक तो परचेज कर लिया, लाइसेंस परचेज कर लिया 1 ईयर 2 ईयर और लाइफ टाइम के लिए, और दूसरा हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज किया कि हाँ इतने दिनों के लिए इतने फीचर्स चाहिए। तो ये दोनों आते हैं हमारे लाइसेंसिंग एस्पेक्ट्स के अंदर। इसको आप लोग देखेंगे। टाइप ऑफ लाइसेंसिंग में हमने जैसे बताया अभी कि मल्टी यूजर भी होते हैं और सिंगल यूजर भी होते हैं। जैसे इंडिविजुअल लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेते हैं हम लोग, अगर किसी कंपनी से लाइसेंस ले रहे हो, जैसे विंडो के ले लो, विंडोज आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने अपने लिए परचेज किया है, आप अपने एक सिस्टम के लिए परचेज किया है तो इंडिविजुअल हो गया। आपने, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने जा रहे हो, आपने क्या कर लिया, आप एंटीवायरस ले लो, बेसिकली एंटीवायरस से जल्दी समझ में आएगा। आप एंटीवायरस आप परचेज करते हो अपने एक सिस्टम के लिए, आप एंटीवायरस परचेज करते हो 3 यूजर 5 यूजर 10 यूजर करते हो, तो एक ही सॉफ्टवेयर को डिफरेंट जगह पे वो कीज के अकॉर्डिंग आप डाल देते हो, 10 सिस्टम में 15 सिस्टम में, जितने के लिए परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। एंड ये देखना पड़ेगा वो कंपनी कितने प्रोवाइड करती है। उसके बाद ओपन सोर्स लाइसेंसिंग होता है। ओपन सोर्स लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, आप सिर्फ उसका क्या है, आपने मेंबरशिप ले लिया, ओपन सोर्स में लाइसेंस ले लिया, तो आप उसमें अपना एडॉप्शन कर सकते हो, नए आप चीजें उसमें डाल सकते हो। यू आर फ्री टू यूज दैट वन as per the guideline given by that open source software. Commercial licensing is also there. If you have large enterprises, you can take commercial license where there is no limitation for using that one, but the limitation no limitation कहा जाता है, लेकिन there is also limitations that is based on the guideline, and under guideline we have traditional, transactional based, traditional model and rental model, and then टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। 4 तरह के होते हैं ये। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या आता है, ट्रेडिशनल मॉडल इंक्लूड्स ओनली द मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर with the shared services, where transaction based model use means how much transaction you can do, कितने ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, इसके बाद वो आपका फेल कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल हम दें तो ट्रांजेक्शन बेस्ड में आता है हमारे पास, जैसे ले लिया कि आपने सर्विस ले लिया लेकिन दिन का आप इतना ही यूज कर सकते हो, दैट इज ट्रांजेक्शन बेस्ड। एक दिन में आप इतने एसएमएस पैक्स पहले लेते थे आप लोग, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले आपका एसएमएस पैक होता था कि हाँ दिन में 100 एसएमएस ही आप भेज सकते हो, तो दैट इज ट्रांजेक्शनल बेस्ड। 2000 एसएमएस के लिए अलग से लेना पड़ेगा, 200 एसएमएस के लिए अलग से लेना पड़ेगा। रेंटल मॉडल, यस, रेंटल मॉडल इज बेसिकली सास मॉडल जो मैंने डिफाइन करा अभी आप लोगों को। रेंटल मॉडल आपको मंथली इतना पेमेंट देना है, यूज करना है। तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, that is the best one. Technology partnership, you have taken license
फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड जब जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा आपको मिलेगा, सारी चीजें देखने को मिलेगी, सारी चीजें यूज करने को मिलेगी। दैट इज अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। यस, किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट आर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? यस सर, बोलिए। सर जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है सर, उसमें सर अभी जो ये नए सॉफ्टवेयर जो आए हैं अभी ERP के, तो उसमें ओवरऑल रखा ऑर्गेनाइजेशन का सब जो जितना भी बिलिंग स्ट्रक्चर है या फिर परचेजिंग है या वेयर हाउसिंग का है, सब डेटा उसमें वो लोग स्टोर कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, सब में आपका पार्टिसिपेशन होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो किसी कंपनी का होता है उसका एक अपना प्रोसेस होता है। अगर आपने पार्टनरशिप ले लिया तो आपको क्या होगा, जब जब कोई अपडेशन होगा या कुछ भी होगा तो आपको हर चीज आपको मिलेगी। जब भी अपडेशन होगा तो आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सारी फैसिलिटेट की जाएगी कंपनी की तरफ से। ये होता है पार्टनरशिप। बट सर उसमें क्या है कि जो फिजिकली जो अभी तक हो रहा था ना जब पेपर वर्क पे, वो अब सब ऑनलाइन होता है राइट? तो सर उसको जैसे कि ओवरकम करना हो कि भाई सपोज एग्जाम्पल के दिल्ली से गाजियाबाद इलाका साइड को रहता हो या स्टे करता हो, तो वहां से उसको वर्क एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकता है? नहीं, आपका क्वेश्चन मैं सही से समझा नहीं, एक बार फिर से समझाइए। मतलब सर इफ इनकेस की सेम सॉफ्टवेयर है, सेम सॉफ्टवेयर में उन लोग को वर्क करना है राइट? कंपनी एक ही है बट उनका जो सोर्स है वो अलग अलग है। मतलब उसका लोकेशन अलग अलग है, कह रहे हो आप? यस एग्जैक्टली। मतलब आप जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप कोलकाता में बैठे हो, कोई चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, राइट? 4 ब्रांचेज में और सॉफ्टवेयर एक ही है, यही कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, यूजर अलग अलग बनाएंगे ना। कोलकाता वाले यूजर्स का अलग होगा राइट्स, दिल्ली वाले यूजर्स का अलग होगा। वो तो सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ना। मतलब जोन डिवाइड कर देंगे हम लोग। जोन डिवाइड कर देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग यूजर जो रजिस्टर करेंगे उन यूजर के अकॉर्डिंग, मैंने काम के अकॉर्डिंग उनको ऑथराइज करना है। सिर्फ ऑथराइजेशन का काम है ये। ओके, मतलब सर उसमें ऑथराइजेशन कर दिया बराबर, बट जो मेन जो उसका जो क्या बोलते हैं राइट्स जो बोलते हैं ना अथॉरिटी, बिल्कुल, और जो उसका सर जो हेड क्वार्टर होता है ना वहीं से उसका अथॉरिटी तो वहीं से होता है ना सर? बिल्कुल। ऑथराइजेशन एक ही जगह से होगा, बस ऑथराइजेशन के बिहाफ पर आप काम कर सकते हो, कहीं से भी, कितने भी यूजर हो सकते हैं, इंडिया के हर लोकेशन से काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, बट उसमें सर रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरी कंपनी का। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओडो कंपनी का ERP सॉफ्टवेयर है ना सर? अच्छा, दो कंपनी का? ओडो ओडो ODOO। और अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ तो गया। उनका ERP सॉफ्टवेयर में से हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी बिलिंग का सब वर्क है ना ऑफिस का, वो सब उस पर जा रहा है। तो मंथली हम लोग को उस पर अपडेट देना होता है कि भाई कितना बिलिंग हुआ है अभी तक का मंथ वाइज और कितना नहीं हुआ है। हाँ बहुत बट अच्छा। सर अगर हाँ, बट इसी से हम लोग को प्रॉब्लम वहां आती है कि जब हम लोग को अगर बाय चांस अगर कोई डिफॉल्ट कोई गलत एंट्री हो गई होती है उसमें, तो उसको फिर हम लोग को डिलीटेशन करवाने में या उसको वहां से ओमिट करवाने में हम लोग को बहुत दिक्कत आती है। तो उसको ओवरकम कैसे करना? उसमें आपके सॉफ्टवेयर का इशू है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक पूरा टेक्नोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी कंपनी का क्या नाम है बताएंगे आप? बुचको मासूल। चलिए एम मार्ट हमने रख दिया, ठीक है। ऑलराइट। एम मार्ट करके एक कंपनी है, इसके ब्रांचेज हैं 10, 3 ब्रांचेज लेता हूं मैं, ठीक है। जी सर। यहाँ भी यूजर है बहुत सारे। समझना ये क्राइटेरिया, मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ बिलिंग का काम होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, राइट। तो ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है। जब हम यूजर रजिस्टर करेंगे ना तो उसका एक ब्रांच कोड होगा,
ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग हम यूजर रजिस्टर कर देंगे। ब्रांच B1 हमने नाम दे दिया, B2 दे दिया और B3 दे दिया। तो जब भी आप इस लोकेशन से बिलिंग करेंगे तो स्टोर होगा तो वहां पर एक फील्ड B1 भी जाएगा हमेशा। ये इस वाले ब्रांच से होगा तो B2 जाएगा हमेशा, यहां से जाएगा तो B3 जाएगा हमेशा, राइट। और ये इसके ऊपर भी लोग होंगे, जैसे हमारा बात करते हैं तो एडमिन होता है, एडमिन के अंदर यूजर होते हैं। इसके अगर राइट हम बना देंगे तो जब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम B1 ब्रांच में यूजर 1 से कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका जो एडमिन होगा, एडमिन के पास वो राइट रहता है कि वो जाकर उसमें से चेंजेस भी कर सकता है। समझ रहे हैं हर्ष? बट सर आप जो कह रहे हो ना, जो एडमिन तो पर सर एक ही होगा ना तीनों टीम का? नहीं ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। तीनों का हम अलग अलग एडमिन रखेंगे और उन तीनों के ऊपर एक एडमिन रखेंगे, यही तो होता है स्ट्रक्चर। एक सुपर एडमिन हो गया, SU हमने सुपर S एडमिन बना दिया, उसके अंदर 3 एडमिन है हमारे, और उस एडमिन के अंदर यूजर हैं जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इनके थ्रू जो प्रॉब्लम होगा ये ठीक करेगा, और इन तीनों के थ्रू जो प्रॉब्लम होगा ये ठीक करेगा बस। तो अब आपका कहीं प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के डेवलप कर रखे हैं। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के ऊपर है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे जहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है कि हाँ उसको अगर प्रॉब्लम हो गई तो मेल पे मेल करो, फिर वहां से वो चेक करेगा, वो करेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जो आपका मॉडल है यही है कि आपको मेल करना होता होगा, बातें करनी होती है, क्योंकि फिर उसको करेक्ट करवाना होता होगा, राइट? हाँ सर, हम लोग को जो हमारा IT सेक्शन है ना सर, उन लोग के साथ हमको इन टच रहना पड़ता है कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम आया हुआ है या इस तरह से ट्रबल शूटिंग है, तो जरा आप उसको सॉर्ट आउट करो। हाँ, वो प्रॉब्लम है आपका, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इशू है, उतने अच्छे से स्ट्रक्चर वे में नहीं है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज नहीं आती। तो सर एक बात पूछना था, जैसे मैं इंडियन ऑयल में काम कर रहा हूँ, तो सर उसमें भी सर जो हमारा SDMS वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए भी हमें सर एडमिन को मतलब मेल करना होता है। वो कनेक्शन अगर लॉक कर देते, मतलब जो हमारा तो IBM से खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है, तो हाँ। IBM को जाके वो रेफर करना पड़ता है कि इसको करे। तो हमारा जो मेन जो हो गया हमारा IBM हो गया, और उसके नीचे जितने भी जैसे क्लासेस हो गया, जो हेड होगा उसका अलग लॉगिन वो होगा जो कुछ एक्सेस कर पाएगा हमारे लिए, और थोड़ा कम मतलब एक्सेस कर पाएंगे। हमें जो जरूरत है वो उसके सिवा हम लोग कुछ और एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही होगा ना सर? जैसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको एक्सेस थोड़ा सा दिया जाता है जितना आपका काम है, आपके ऊपर वालों को उसके अकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाता है। मैं सब लेवल बाय स्ट्रक्चर डिफाइन होता है ना, लेवल बाय लेवल अलग अलग ऑथराइजेशन होती है, जिस वजह से काम होता है, जिस ऑथराइजेशन के बिहाफ पे काम होता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर याद होगा आप लोगों को तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सब कुछ बता चुका हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताया मैंने? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीनों मैंने बताया है पहले ही। कल क्लास में बताया था सर आपने। इसको आप लोग रीड करेंगे, जो डाउट होगा पूछेंगे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामिंग कहलाता है, यही ना? yes. प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस, किसी ने कहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कैन एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस रिजल्ट। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कब करेगा? विकास, अगर आप को बात नहीं करनी है तो म्यूट कर लीजिए, घर में है, हम सब घर में हैं, तो हो सकता है आवाज आए, तो इसलिए जब नहीं जरूरत हो तो म्यूट कर लेंगे, जब जरूरत हो तो हम अपना अनम्यूट करके बातें करेंगे। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच वी कैन राइट प्रोग्राम्स to resolve any kind of issues which are facing in a day-to-day life.
but the programming need translator because computer cannot understand whatever we are writing directly into the system. कुछ भी हम डायरेक्टली जो सिस्टम में लिखते हैं वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए क्या आता है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। अब एक ट्रांसलेटर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कंपाइलर हो सकता है, असेंबलर हो सकता है और इंटरप्रेटर हो सकता है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग, फिर आपको अगले सेमेस्टर्स में आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर पूरा चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी बेसिक्स जानने हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसको पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करता है और एक बार रीड करके बता देता है लाइन नंबर इतने में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर इतने में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर इतने में प्रॉब्लम है, राइट। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और लाइन बाय लाइन एरर बताता है। ये क्या करता है, एक कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करके और सबका एरर एक बार में दे देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले लाइन में एरर है तो अगले लाइन की बात ही नहीं करेगा, पहले लाइन में एरर पहले रिमूव करो फिर अगले लाइन में हम चलेंगे। असेंबलर क्या है, असेंबलर कंपाइलर की तरह काम करता है, लेकिन ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रांसलेटर हो कैसे काम करता है, जो भी आप कोड लिखते हैं उस कोड को क्या करता है, पहले कंपाइलेशन करता है यानी ट्रांसलेशन में जाता है, जिससे ट्रांसलेटर में जाता है। तो ट्रांसलेटर के 4 फेजेज होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस और कोड जनरेशन, और तब कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट, कोई भी सोर्स लैंग्वेज है वो जाता है क्या, ट्रांसलेटर में, और ट्रांसलेटर से कहा जाता है आपका टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज में जाकर के आपको, टारगेट लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, वहां पर ले जाकर इसे ट्रांसलेशन में दे देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेटर। बोलिए, ट्रांसलेटर समझ में आया आप लोगों को? ट्रांसलेटर इज समझ में आया। Translator is a program which is used to translate the source language into the target language. Source language को target language में convert करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है। There is a debugger. डिबगर क्या होता है, डिबगर एक टूल है जिससे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि द प्रोग्राम इज eligible to work or not, and if there is any issue we can stop the program, we can just make changes in the program, and after making changes in the program we can run it once again, and this is called debugger. सर ये लिंटर और डीबगर में डिफरेंस क्या होता है? किसमें? लिंटर और डीबगर। लिंकर की बात कर रहे हैं कि नहीं सर, लिंटर, जब हम VS कोड में कोड करते हैं प्रोग्राम्स को तो वहां पे 2 तरह के टूल्स आते हैं। एक लिंटर आता है जो कि सिंटैक्स वगैरह को वेरीफाई, जो आप पूछ रहे हो ना वो एडिटर बेस्ड चीज है। VS कोड क्या है, VS कोड इज जस्ट अ एडिटर, नथिंग एल्स। VS कोड में आप लोग काम करते हो तो VS कोड क्या है, VS कोड कोई प्रोग्रामिंग के लिए तो ये नहीं है ना, जस्ट लाइक ए नोटपैड, वो जस्ट एक एडिटर है, उसमें कोई भी प्रोग्राम लिख लो आप, नोटपैड में कोई भी प्रोग्राम लिख लो। पाइथन वगैरह, पाइथन, रूबी, ये सब होगा आई थिंक कंपाइलर। कंपाइलर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, राइट? जैसे पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये सब तो कंपाइलर ही होगा ना। सी कह लो, C++ कह लो, जावा कह लो, पाइथन कह लो, रूबी कह लो, PHP कह लो, इन सब में क्या है, इसके ट्रांसलेटर हैं। हम तो सर VS कोड को भी यूज नहीं, जरूरत नहीं है। अगर हम लोग नोटपैड प्लस को भी यूज करते हैं तो वो भी चलेगा ना, वो भी तो एडिटर है।
नोटपैड भी एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस भी एडिटर है, आपका VS कोड भी एडिटर है, आपका सबलाइन टेक्स्ट भी एडिटर है, सारे लोग यूज करते हैं। हेलो ठीक है, अब आते हैं हेलो इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर भी मैंने बताया। हेलो हाँ जी बोलिए हर्ष। सर, जो टारगेट प्रोग्राम और टारगेट लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस है सर? नहीं नहीं, एक ही चीज है टारगेट लैंग्वेज, भाई टारगेट प्रोग्राम कह लो, टारगेट ओ- प्रोग्राम कह लो या टारगेट लैंग्वेज कह लो। अब ओके इन सब के लिए दो चीजें यूज होती है, लिंकर और लोडर। लिंकर क्या है? लिंकर इटसेल्फ इज ए प्रोग्राम, बेसिकली कह सकते हो, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। तो लिंकर इज इटसेल्फ इज ए प्रोग्राम व्हिच इज यूज्ड टू लिंक द कोड टू द एग्जीक्यूशन रिजल्ट। मींस किसी भी, मान लो कि आप कोई भी चीज लिखते हो तो ट्रांसलेशन कब होता है? जब ट्रांसलेशन के लिए स्पेसिफिक फाइल्स हैं, उससे इंटरकनेक्ट होता है, तभी जाके ट्रांसलेशन होता है, नहीं तो ट्रांसलेशन एरर आ जाता है। जैसे हमने लिख दिया सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख दिया, और उस प्रोग्राम को हमने कहा क्या कि प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा, राइट? हमने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख दिया और कहा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हमने करवाया। एग्जीक्यूट करते समय क्या होगा भाई? वो ट्रांसलेशन मोड में जाएगा। ट्रांसलेशन मोड में जाने के लिए क्या करेगा? अपने से रिलेटेड फाइल को, सी लैंग्वेज से रिलेटेड फाइल्स में जाएगा कि उसके ट्रांसलेटर वाले फाइल में, और जाकर के उससे मैच करेगा। तो ये जो दोनों को लिंक करने वाला काम होता है ना, वो करता है लिंकर। लिंकर इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू लिंक द एडिटर कोड टू द ट्रांसलेटर कोड, ट्रांसलेटर फाइल्स बेसिकली। अब देखो, ऑब्जेक्ट कोड है और लाइब्रेरीज हैं, वो दोनों क्या होती हैं? डायरेक्ट इन लिंकर से अटैच्ड होती हैं, और इन ऑब्जेक्ट कोड और ये लाइब्रेरीज के बिहाफ पर क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, और रिजल्ट हमारा ट्रांसलेशन होकर के निकलता है। जो आप पूछ रहे थे टेक्स्ट एडिटर की बातें यहाँ पे हो गई। टेक्स्ट एडिटर आप लोग पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डन। यस बोलिए हर्ष। सर, इंटरप्रेटर और लिंकर के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? Interpreter is a translator. Linker is another one. Linker is used to link the entire program for translation. अच्छा, दोनों का जो आउटपुट है वो तो सेम ही रहेगा ना एग्जीक्यूशन का? नहीं 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 नहीं, आप फिर समझे नहीं। लिंक आउटपुट कौन देगा? ट्रांसलेटर देगा। लिंकर तो सिर्फ लिंक कर देगा किसके साथ? मान लीजिए कि आपने ट्रांसलेटर आपका आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट? और कंपाइलर यहाँ बैठा हुआ, राइट? कंपाइलर के अंदर क्या है आपका? ये ट्रांसलेटर है आपका। तो सी में आपने इस एडिटर में प्रोग्राम लिखा, तो ये सी का एडिटर है, तो सी के कंपाइलर से ये अटैच कर देगा, और कंपाइलर जो रिजल्ट देगा, कंपाइलर के अंदर क्या होगा? उसका ट्रांसलेशन होगा, उसका सिंटेक्स चेक होगा, सब कुछ होगा, और तब जाकर के यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो कंपाइलर क्लियर हो गया आप? हाँ सर। सर, जो एट्रीब्यूट्स होगा वो लिंकर का काम करेगा ना सर? मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट्रीब्यूट से सिर्फ वो लिंक करने का काम करेगा, बस, और कुछ नहीं। तो वही लिंकर का काम है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब हर लैंग्वेज का डिफरेंट हाँ, हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था, MS वर्ड का, स्प्रेडशीट का, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे VLC प्लेयर मैंने बताया था, मीडिया प्लेयर कर दिया था मैंने, छोटे छोटे चेक डिस्क वाली बात करी थी मैंने, डिस्क चेकर कहा था, बैकअप एंड रिकवरीज कहा था। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। Just you have to go through that one. This is all about the first unit of second block. आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता रहता हूं कि आप लोग ये भी जरूर पढ़ेंगे। क्या बताइए? चेक योर प्रोग्रेस जरूर पढ़ेंगे आप लोग। फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड यूनिट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में भी बेसिक्स हमने पढ़ा है, याद है आप लोगों को?
मैं पहले ही डील करते चला जाता हूँ ताकि बाद में ये तो मुझे ज्यादा आप लोगों को भी परेशानी ना हो और मेरे को भी ना हो। ये तो Easily सर हम लोग सिस्टम कर सकते सॉफ्टवेयर में आ गया ना सर, सिस्टम हैं। सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को रीड करने के लिए दे रहा हूं। आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम है, अब नेक्स्ट सैटरडे को क्लास है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट सैटरडे तक का टास्क मैं आपको क्या दे रहा हूं, सेकेंड ब्लॉक के में 3 यूनिट बच्चे पड़े हैं, इन 3 यूनिट को आप लोगों को रीड करना है। हालांकि हम लोग 3 यूनिट तक पहुंचेंगे नहीं, ये सेकेंड ये लास्ट की 2 क्लासेस में हम मुश्किल से 3 क्लासेस लग जाएंगी इस यूनिट को कवर करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है इसमें, जैसे फ्लो चार्ट बनाना सीखना है, आपका डायग्राम, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो फ्लो चार्ट भी हमारा एक क्लास तो वही ले लेगा, फ्लो चार्ट हमारा ले लेगा। तो ये चैप्टर इजी है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिया है सब कुछ। इसको आप लोगों को रीड करना है, राइट? Yes, sir. अब आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं, आप लोग पूछिए, आप लोगों को क्या क्या पूछना है बोलिए। Sir, I wanted to ask about interpreter and compiler. Is interpreter like translating one line by line and compiler translates everything all at once? Yes. That is Yes. the difference. Okay. What about It's correct. assembler? What is the difference between assembler and compiler? Assemblers acts like a compiler, but it is for the specific language, that is the assembly language. Okay. You will study in second semester about the assembly language. Okay, sir. Thank you. Yes, Hers, you wanted to ask something. Sir, और किसी के पास कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना हो पूछिए आप लोग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग को पेपर में जो बाइनरी कन्वर्ट टू बाइनरी एंड डेसिमल वाला जो क्वेश्चन रहता है ना सर, उसमें से मुझे डाउट्स आ रहे हैं सर। वो जो कन्वर्जन का जो आता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस लेने हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट? रहने दो रिकॉर्डिंग, ऑफ कर देता हूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरत नहीं है उसकी।